Good morning, children. So, coming back to our next classes, that is economics. Last time, in our previous chapter, we had studied the factors that affect the extension of market. मार्केट को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बढ़ाने में मदद करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण मार्केट्स में सामान का सेल और डिमांड बढ़ती है. दिस वी हैड डन इन अ प्रीवियस चैप्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ मार्केट was divided into two parts, that the factors determining the extent of market was based on A, quality or nature of commodity. Second was internal condition of the country. It was the first part, that is A part, I have completed and I had explained you last year. This was all about the part A. Now we are coming to the part B, internal conditions of the country. The extension of market depends on मार्केट का बढ़ना या कम होना. इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री. इफ़ द कंडीशन ऑफ कंट्री इज साउंड एंड देयर इज सिक्योरिटी एंड पीस, पीपल want to work hard and they spread their business, they extend their business because they know in a peaceful atmosphere they can do their business very well. So all those factors, all those conditions which are necessary for the extension of market, that is first internal condition of the country. First point is peace and security. If there is peace and security in the country, no riots, no such insecure elements are there, or no fear of being market strike, close down of the market and all these type of things. So the people, they work in a peaceful atmosphere and the market becomes very much extensive. People deal without fear. Peace and security helps people to deal without fear. If internal peace and security is there, हमारे कंट्री में सुकून और शांति है, तो then the market gets extended, वहाँ पर बिजनेस अच्छा होता है. इफ़ देर इज़ फियर ऑफ डिस्टर्बेंस, बार बार डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि राइट्स समझते हो ना, कम्युनल राइट्स, आए दिन झगड़े होना या लड़ाई होना और स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स वगैरह होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट एक्सटेंड नहीं हो पाती, मार्केट सर्वाइव नहीं हो पाती, बिजनेसमैन बराबर से बिजनेस नहीं कर पाते. सो इफ़ देर इज़ अ फियर ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू ऑफ एंड ऑन राइट, आए दिन होने वाले कम्युनल राइट्स, इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल डेवलपमेंट इज़ इम्पेयर्ड, रुक जाता है. ऐसी कंडीशन में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट रुक जाता है. सुकून होगा तो सब कुछ सही तरीके से होगा, और अगर सुकून नहीं होगा तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. Means of transport and communication, very simple. Well developed and effective means of transport help in carrying goods from one place to another. Long distance can be covered in a very short period. It helps in the extension of market. Then comes the next point, that is banking facilities. If there is proper banking facilities, because business runs on and through capital. If there is problem of capital, so no businessman will be able to develop their business, the business will not be progressive. To promote the business, you on and off need capital. आप लोग को पूंजी की ज़रूरत पड़ती है. So if there are many institutions providing loan, if there is better loan facilities, then these banking facilities and loan facilities help in progressing the business, help in growing of the business. The economic stability of a country also helps in increasing the market. Easy loan facilities, sound development of financial institutions widen the scope of market. जितने ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो बार बार लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं ईजी वे में, तो मार्केट तेज़ी से बढ़ता है. डेवलप्ड means of advertisement. Nowadays everything is sold through advertisement. जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, जितनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा, सामान
उतनी तेज़ी से मार्केट में बिकता है। कभी कभी तो लोग बेकार चीज़ भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट से मार्केट में बेच देते हैं। तो नाउ डेज वी कंज्यूमर्स गेट वेरी मच अट्रैक्टेड थ्रू advertisement. If there are better means of advertisement, and if the advertisement is very pleasing and attractive, the goods get sold in the market. These days propaganda and advertisement go a long way in the widening the scope of market of all the commodities. Advertisement, good advertisement helps to increase the demand. एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी, लोग को अट्रैक्टिव और प्लीजिंग लगेगी, एडवर्टाइजमेंट को देखकर अट्रैक्ट होकर वो लोग मार्केट में उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड को बढ़ा देंगे. दस द मार्केट इज एक्सपांडेड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. गवर्नमेंट पॉलिसी. इफ़ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ फ्लेक्सिबल, ईजी टू बी कैरिड आउट, लोगों को आसानी से समझ में आए और वो उसके ऊपर बराबर उसको फॉलो कर सके. If the government policies are easy to be followed and understandable, then the market get extended. If the policy is favorable, लोगों को फेवर करती है, ट्रेड को फेवर करती है और इंडस्ट्रीज़ के लिए फेवरेबल है, the extent of market to increases, मार्केट तेज़ी से बढ़ती है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन स्कीम, लो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने कम टैक्सेस होंगे इतनी ज़्यादा मार्केट में बढ़ने का, एक्सपांड होने का स्कोप होता है. फॉरेन कॉपरेशन, हमें फॉरेन कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम लोग आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन, दूसरी फॉरेन कंट्री से कोलैबोरेशन में सामान इंडिया में बनते. कोलैबोरेशन मीन्स बाहर की कंपनी आकर हमारे देश में सामान बनाने में हमारी मदद करती है. सो फॉरेन कॉपरेशन encourages द फॉरेन ट्रेड, डेट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. अगर हमारा सामान अच्छा है, हम इम्पोर्ट कम करें, सामान को एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो ऐसे में हमारी मार्केट एक्सटेंड होगी. द इंटरनेशनल मार्केट गेट्स वाइडन्स ड्यू टू बेटर एक्सपोर्ट एंड लेस इम्पोर्ट. इम्पोर्ट कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए. देन कमिंग फेयर डीलिंग एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी सच्चाई के साथ अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट एक्सटेंड होगी ही. फेयर डीलिंग एंड ऑनेस्टी ऑफ बिजनेसमैन, थ्रू ऑनेस्टी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट लार्ज स्केल. अगर सामान की क्वालिटी अच्छी है और उसका स्टैंडर्ड अच्छा है तो डेफिनेटली मोर डिमांड विल बी क्रिएटेड इन द मार्केट एंड मोर गुड्स विल बी सोल्ड एंड वी कैन मेंटेन अ गुडविल एंड मोर प्रॉफिट कैन बी अर्नड. स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, काम को बांट देना. अगर काम बांट दिया जाए वर्कर्स के अंदर तो काम जल्दी से ख़त्म होता है. इफ़ द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ देयर, काम बंटवारे के साथ किया जाता है और जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो काम के अंदर स्पेशलाइज्ड है, वो काम अगर उनको दिया जाता है तो दे वर्क विथ इंटरेस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स इज़ मेंटेन. सो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ मस्ट इन प्रोडक्शन लेवल. जो लोग जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, जिनमें उनका इंटरेस्ट है, उनसे वही सामान बनवाइए, उनसे वही काम करवाइए, तो काम जल्दी भी होगा, कम कॉस्ट में भी होगा और मार्केट में बहुत अच्छी तरह से उसकी डिमांड बढ़ती है. सो इफ़ देयर इज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, मोर प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट उसकी कम होगी. दिस हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट. अगर सामान की कीमत कम है और क्वालिटी अच्छी है तो कंज्यूमर्स वही सामान खरीदना पसंद करते हैं. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केट एक्सटेंड ऑफ मार्केट. मार्केट को एक्सटेंड करने में, मार्केट को एनहेंस करने में, मार्केट को बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर्स ज़रूरी है? ये दो, quality or nature of commodity, internal condition of the country. These two has already been discussed with you all. Now in our next classes we will be doing different type of competition which exist in the market. For example, perfect competition. Here there is perfect competition, then there is imperfect competition, oligopoly, monopoly, duopoly. All these I will explain you in my next lesson. Till then, have a nice time. Good day. Goodbye. Thank you.